Very good afternoon to everyone. In today's topic, we are going to discuss about pharmaceutical aerosol. My name is Priya, and I'm working at assistant professor at IMT College of Pharmacy, Greater Noida. In today's topic, we're going to discuss about what is the definition of pharmaceutical aerosol and what are the advantages, disadvantages, mechanism, how can the aerosol, a mechanism of aerosol, and are the equipments of aerosol, and what are the marketed formulation, and for that, and after mechanism, we're going to discuss about what are the evaluation parameters which is used for the pharmaceutical aerosols. Okay, so we start from the pharmaceutical aerosol, right? If I'm talking about that, what is pharmaceutical aerosol, or what is known as pharmaceutical aerosol? That means something according to nowadays, or according to present days, the aerosol defined as a package system. That means a system that depends on the power of compressed or liquid gas to expel the content or drug content from the container is known as aerosol. That means a packaging of therapeutic active ingredient in a pressurized system, and the compressed gas or liquefied gases are responsible for expel out the particular product from that container. Okay, the principle behind the aerosol is the system which is applied for as a compressed gas. It's develop a pharmaceutical it develop a pressure to expel out the pharmaceutical active ingredient, right? This aerosol product are intended for the topical administration, for the treatment of burn, cut, inflammation, antimicrobial activity, antifungal activity, and another various dermatological condition as well. Right. After that, the pharmaceutical represents, that means the pharmaceutical aerosol have significant like doses form as some other doses form as well. That means if we compare pharmaceutical if we compare aerosol as a pharmaceutical doses form, after that, it is also that much impactful like our tablet, like our capsule, and other liquid solution as well. Okay. Now, like advantages, what are the advantages of aerosol? Firstly, uh, it can remove the contamination of any material. That means when we when we targeted our product as to be sterile. Okay, so it is important that it cannot be cannot be connect with the environment, right? So if we use a doses form as a form of aerosol, then it is most important factor. It can maintain our doses form, and the contamination rate of doses form or doses that material will be very low, because जब तक आप जो है आप कोई भी टैबलेट लेते हो या फिर कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, कंटामिनेशन जितनी बार वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी उतनी बार ही वो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या है, आपको आपको उस ड्रग को टच भी नहीं करना, और वो ड्रग अल्टीमेटली आपकी टॉपिकल साइट पे या जहाँ पे भी आपका साइट ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएगा। दैट मीन जब भी ये इन्वायरमेंट से कनेक्ट ही नहीं होगा, या आप इन्वायरमेंट से इस एरोजोल के थ्रू आप अपने ड्रग को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सो दैट ड्रग का कंटामिनेशन ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ड्रग है तो फिर ये एक मतलब ये एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जहाँ पे आप उसको कंटामिनेशन से या हाइग्रोस्कोपिक नेचर है या फिर कोई भी ऐसा ड्रग अगर सेंसिटिव है तो आप इसको एरोजोल में डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइक इट कैन द प्रोडक्ट शुड बी स्टेराइल on this that this using aerosol, right? Next, medication can be delivered in the particularly affected area or directly to the affected area in a desired form, such as spray, स्टीम, क्विक और स्टेबल फॉर्म। मतलब अगर हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं, ठीक है,
तो फिर क्या हो जाएगा, आपका मेडिकेशन या आपका आपको जो भी ड्रग को अप्लाई करवाना है अपनी बॉडी में, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिलीवर्ड एरिया पे या जहाँ पे आपको जैसे किसी भी पर्सन को इन्फ्लामेशन है या किसी फंक्शन को फंगल एक्टिविटी हो रही है, फंगल रिएक्शंस हो गए, वो पर्टिकुलर पर्सन को पूरे ओरल, मतलब अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो सीधा सीधा वो हमारे ओरल कैविटी से लेके एक्सक्रीशन तक मतलब टारगेट करते हैं, ठीक है। बट इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम टॉपिकली उस पर्सन को वहां पे जहाँ पे सब उसकी जो स्किन में हुआ है एंटी फंगल एक्टिविटी या इन्फ्लामेशन है उसको थाइज में, तो वहां पे ही उसे बस हम ड्रग को देंगे एज अ फॉर्म ऑफ स्प्रे या फोम या फिर स्टीम, ठीक है। और बाकी कोई भी हमारा सिस्टम या फिर बाकी कोई भी हमारा बॉडी का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। That is about targeted drug delivery system. Then third one is irritation produced by mechanical application of the topical medication, and it is removed or eliminated by this process as well. मतलब अगर हम बात करेंगे कि हमारा ड्रग सेंसिटिव है, लाइक हमारा ड्रग जीआईटी में जाके इरिटेशन कॉज करता है या फिर लाइक कोई भी सेंसिटिविटी कॉज करता है, या फिर हमारा ड्रग जब वो जीआईटी में इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसकी मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आके उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो हम उन ड्रग्स को एज अ फॉर्म ऑफ एरोजोल डिजाइन करके उस पर्टिकुलर साइट पे दे सकते हैं, सो दैट जो भी उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंड उसकी जो मेडिकेशन में इरिटेशन कॉज करा या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहीं पर्टिकुलर में जीआईटी हो गया, रीनल हो गया, यहाँ पे अगर मेडि मेडिकेशन में अगर इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, इसे हम एज अ फॉर्म ऑफ एरोजोल हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर उसकी इरिटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देन फोर्थ आपका ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ एप्लीकेशन। जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई भी मेडिकेशन बनाते हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं, पहला एम उसका होता है कि हम कितने पेशेंट्स को टारगेट करेंगे। अब आप देखिए, जब भी आप ऐसे डोजेस फॉर्म की बात करते हैं या ऐसे एरोजोल, मतलब आपको बस स्प्रे ही करना है, राइट। तो कोई भी पेशेंट को अगर मैं पैरेंटल डोजेस फॉर्म दूं या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म दूं या सॉलिड डोजेस फॉर्म दूं, उसकी जगह पे अगर हम एज अ फॉर्म ऑफ एरोजोल देते हैं उस ड्रग को, टैबलेट कैप्सूल की जगह अगर हम स्प्रे करने को बोलते हैं, तो अल्टीमेटली पेशेंट्स को बस उसे कहीं पे भी रहे वो बस स्प्रे करेगा, और उसकी जो जो भी स्किन डिजीज है या फिर जो भी उसकी पल्मोनरी डिसऑर्डर है उससे वो मतलब उससे उसका ट्रीटमेंट होता रहेगा। दैट मीन पेशेंट्स को कोई पर्टिकुलरली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट वो ये कैरी करेगा लाइक अ डीओ या फिर लाइक अ परफ्यूम, एंड दैट इज sufficient for him. Then last, application of medication in thin layer. जब भी आप देखेंगे जैसे हमारा ऑइंटमेंट हो गया या फिर कोई भी बाम हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका स्किन पे एक ऑयल का टेक्सचर बना देता है। बट इन केस ऑफ एरोजोल वो क्या हो जाएगा, आप अपनी ड्रग को एज अ प्रोपेलेंट देंगे। प्रोपेलेंट मतलब वो हो जाएगा कि इधर कंप्रेस्ड गैस और लिक्विफाइड गैसेस, राइट। ऐसे डोजेस फॉर्म जो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, तो कोई भी ऑयल फेस या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी फेस आपकी बॉडी में नहीं रहेगा जिससे आपकी लाइक इरिटेशन या फिर सेंसिटिविटी कॉज ना हो। बस एक आप अप्लाई करेंगे और वो आपकी स्किन में थिन लेयर कॉज करके या थिन लेयर क्रिएट करके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, राइट। दिस आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एरोजोल। आप देखिए, जब भी आप कंपोनेंट्स की बात करते हो या फिर क्या क्या चीज आपकी एरोजोल को बना रहा है या क्या मेजर एक्टिविटी है या मेजर कंपोनेंट्स है जो एरोजोल को देखा मतलब बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। फर्स्ट, जब भी आप एरोजोल की पैकेजिंग देखेंगे, राइट, देयर आर 4 पार्ट्स, दैट मीन प्रोपेलेंट, कंटेनर, वर्ब एंड एक्वेटर।
एंड लास्ट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड। दैट मीन फर्स्टली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दैट यहाँ पे ये चीज दैट मीन जो प्रोपेलेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोपेलेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और जब तक प्रोपेलेंट प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा तब तक वो ड्रग जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट नहीं होगी। दैट मीन 80% काम जो है आपका प्रोपेलेंट का होता है, राइट। सेकंड, आप ऐसी कंटेनर को सिलेक्ट करोगे जो कि टेम्परेचर और प्रेशर को रेजिस्ट कर पाए, मतलब टेम्परेचर देता, एक आइडियल टेम्परेचर होता है 1300 फ़ारेनहाइट फॉर द सिलेक्शन ऑफ एरोसोल कंपोनेंट्स, राइट। तो आप ऐसे कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे जो जो मिनिमम प्रेशर जो 1400 सॉरी 140 to 180 psi इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाए। और दूसरी बात, आप कंटेनर में टेम्परेचर रेजिस्ट करने की, टेम्परेचर 1300 फ़ारेनहाइट और मतलब रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए। देन वर्ल्ड एंड एक्वेटर, इसका हम डिफरेंटली बात करेंगे, दैट इज वर्ल्ड एंड एक्वेटर। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड। As I said, propellant is responsible for developing the proper pressure within the container, and it expels the product when valve is open, and to the aid of automation. And lastly, the production of foam is product or foam or spray produced by this method, right? That means ये जो प्रोपेलेंट है या फिर ये जो आपका जो भी आप गैस यूज करेंगे, ठीक है, वो लिक्विफाइड गैस हो या कंप्रेस्ड गैस हो, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी जो कंटेनर है उससे आपकी ड्रग को बाहर की तरफ निकलने के लिए, या फिर जब भी आप अपने वाल्व में प्रेशर क्रिएट करेंगे, जब भी आप अपने वाल्व में कोई भी लाइक ओपन करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो ड्रग है आपके बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रोपेलेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रोपेलेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट या फिर लिक्विड गैस प्रोपेलेंट, राइट। ये कुछ प्रोपेलेंट्स हैं जिनको आप जो है एज अ फॉर्म ऑफ लाइक, ये कुछ गैस है जिनको आप एज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेलेंट यूज कर सकते हैं। दैट मीन अगर आपको ओरल या फिर आपको ओरल कैविटी के लिए एरोजोल बनाना है या फिर पल्मोनरी के लिए एरोजोल बनाना है फॉर इनहेलेशन, तो फिर आप एज अ प्रोपेलेंट फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन डाइहाइड्रोफ्लोरीमीथेन बना ले सकते हैं, दैट इज प्रोपेलेंट 12, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन, दैट इज प्रोपेलेंट 114। ये सारे कुछ यूज कर सकते हैं। फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन आप प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन कोई भी ड्रग को सिलेक्ट कर सकते, कोई भी गैस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको बेसिकली कंपाउंड गैस के फॉर्म में चाहिए अपना प्रोपेलेंट, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड आर द बेस्ट ऑप्शन। बेसिकली आपका यही एम होगा कि आप ऐसी प्रोपेलेंट को यूज करोगे जिसकी आपकी प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है हो, और दूसरी बात वो आपके प्रोडक्ट को बाहर की तरफ, जब भी आपका प्रोडक्ट में मैकेनिकल स्ट्रेस है तो वो आपके प्रोडक्ट को बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर दे। कंटेनर, मैंने आपको पहले बताया था कि कंटेनर का एक स्टैंडर्ड होता है, या फिर कंटेनर आप जब भी सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये देखना है कि वो कंटेनर 140 to 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गॉज का प्रेशर, दैट इज PSIG, को बर्दाश्त कर पाए एट द टेम्परेचर 1300 फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कंटेनर को देखेंगे, जब भी आप लीक टेस्ट करेंगे या फिर जब आपकी कंटेनर की स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा मिनिमम टेम्परेचर, दैट मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर आप उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कोई भी कंटेनर सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको ये दोनों चीज, प्रेशर का और टेम्परेचर की रेजिस्टेंस पावर उस मेटल का होना चाहिए। पहला, यहाँ पे जब भी एरोसोल का कंटेनर बनाया जाता है तो बहुत सारी मेटल्स यूज करी जाती है, दैट मीन दैट मेटल शुड बी टी दैट मेटल मे बी एल्यूमिनियम, टीन प्लेटेड, स्टेनलेस स्टील, ग्लास और प्लास्टिक, राइट। तो फिर फर्स्टली वी टॉक अबाउट दैट टीन प्लेटेड कंटेनर।
Yeah, in case of tin-plated container, it consists of sheet of steel plate that has been sealed with a tin, right? The thickness of the tin coating depends on its weight, and tin-plated steel like obtained from the okay, sorry, thin sheet of that tin. It is coated with the organic material. After the sheet is cut into the size the make to a body, okay, the top and bottom of the body are connected with that particular body. The body is into converted into a cylindrical shape, and it seems we are shouldering the operation. Once the top and bottom is attached with the body, and then after that organic coated with the organic material. That means जब भी आप ऐसी टीन कोटेड बॉडी की बात करेंगे तो टीन कोटेड प्लेट्स जो होती हैं वो बेसिकली स्टील के प्लेट से हम बनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो थिकनेस है और डिपेंड करेगा आपको कैसे डिजायरेबल फॉर्म में आपकी वेट कितनी है। आपकी टीन शीट की वेट अगर 50 mg है तो उसकी थिकनेस भी बहुत मिनिमम होगी। अगर वो 100 mg की है तो फिर वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगर आपका क्या करोगे, वो जो शीट आपको मिली है उसको सिलेंड्रिकली शेप किया जाता है। आफ्टर दैट सिलेंड्रिकली शेप करने के बाद टॉप एंड बॉटम को अटैच किया जाता है। दैट मीन वर्ल्व एंड इक्वेटर वाला पोर्शन। वो सारी चीजें करने के बाद वहां पे एक कोटिंग होती है दैट इज यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये सीमलेस एरोजोल कंटेनर है बिकॉज ऑफ लाइक बिकॉज इन मेनी फार्मास्यूटिकल कंपैटिव फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स एल्यूमिनियम कंटेनर यूज किया जाता है बिकॉज इट हैज लेस डेंजरस एंड द लाइक इट इज सीमलेस एंड नेचर it is in seamless nature, cheap for as a point of view of pharmaceutical company, and the resistance capacity to the corrosion is high, very high, right? But यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एल्यूमिनियम को लाइक सिलेक्ट करते हो तो हम बहुत बार देखे हैं कि ये अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है या फिर एल्यूमिनियम कंटेनर खुद भी रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेलेंट, ठीक है। ये रिएक्ट करने के बाद हो सकता है हाइड्रोक्लोराइड बनाए, हाइड्रोजन बनाए, एसिटाइल हाइड्रोक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सारी कुछ कोहेसिव प्रोडक्ट्स बना सकता है, ठीक है। दैट मीन अगर आपके कंटेनर के अंदर ये सारी कुछ गैसेस बन रही हैं या ये सारी कुछ प्रोड्यूस हो रही है तो फिर ये हो जाएगा कि आपकी ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी या आपकी ड्रग की नेचर जो है वो चेंज हो सकती है। तो फिर आपको थोड़ा मतलब आप एल्युमिनियम को सिलेक्ट करने के टाइम पे ये कुछ माइनर मेजर ड्रॉबैक है जहां से आप जो है आपकी ड्रग की थेरेप्यूटिक एक्टिविटी या फिर आपकी ड्रग की केमिकल नेचर चेंज हो सकता है, राइट। तो आप जब भी सिलेक्शन करेंगे एल्यूमिनियम का मेक श्योर कि आपकी ड्रग की कंपैटिबिलिटी उसके साथ है एंड ये कोई पर्टिकुलरली कोई चीज प्रोड्यूस ना करे। लास्ट आपका नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील कंटेनर। आप जब भी देखेंगे स्टेनलेस स्टील कंटेनर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड because of production problem as well as the cost, right? As an industrial point of view, the cost अगर आप ऐसी स्टेनलेस स्टील मटेरियल को खरीदना चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट हाई आपको कंटेनर में ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बट इसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस है या फिर इसकी जो ये जो है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है वो भी लाइक रेजिस्टेंस के लिए इन केस ऑफ अनदर मटेरियल अगर है ना। और दूसरी बात इसको आप मोस्टली आप देखोगे कि इसको ऑर्गेनिक कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और लास्टली आपको जब भी आप पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी की बात करें तो मतलब आप कोई भी ड्रग को इनहेलेशन के थ्रू देना चाह रहे हो तो फिर हम उस केस में जो है ये वाला लाइक स्टेनलेस स्टील के कंटेनर यूज करते हैं, ठीक। लास्ट आपका ग्लास कंटेनर बिकॉज ये लार्ज अमाउंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है बिकॉज जो है आपका ऐसे एरोजोल जो देखोगे वो क्या कोरोजन का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता एंड ये मोस्टली प्रेफरेबल होता है फॉर द कंपैटिबिलिटी एज अ पॉइंट ऑफ फ्लैश पॉइंट व्यू पॉइंट एंड आपकी जो
ग्लासेस है, ठीक है, वो कोई भी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करती मोस्टली, वो बोरोसिलिकेट ग्लास हो, लाइम सोडा ग्लास हो, या फिर कोई भी XYZ ग्लासेस हो। बट इसका ये ड्रॉबैक है कि ये फ्रजाइल होती है, तो फिर आपको कैरी करने के लिए या स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट ये स्टोरेज में भी अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट जो है आपका, बेसिकली जब भी आप सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे, दैट मीन आपके प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, ऐसे डोजेज, ऐसा कंटेनर, राइट। नेक्स्ट, आप जब भी इन सारी चीजों को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये ध्यान देना है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि आपकी प्रोपेलेंट जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो वेपर प्रेशर प्रोपेलेंट की कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विड में डेंसिटी उसकी कितनी है, जिसको कि हम बाद में भी एवेल्युएशन में डिस्कस करेंगे। Valves, अब जब भी valve की बात करोगे, the present aerosol valve is multifunctional. That means it is capable being easily opened, and in addition of capable, it delivered the content in a desired form. है ना। तो अगर बल्ब की रोल की बात करोगे तो बल्ब का ये नहीं होगा कि आपका ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद आपके ड्रग को डिजायर्ड फॉर्म में डिलीवर करने के लिए भी आपका बल्ब रिस्पॉन्सिबल है। अगर कंपनी क्लेम करे कि ये स्प्रे है, तो बल्ब रिस्पॉन्सिबल है उसे स्प्रे की तरह आपकी बॉडी में, आपकी टॉपिकली जो है स्प्रे एज अ फॉर्म ऑफ, अगर फोम कंप्लेन करने, लाइक फोम प्रोड्यूस करने में भी वर्ल्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल, द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एज वेल। आपकी डिजायर्ड फॉर्म के साथ साथ आपका मेडिकेशन जितना आपको डिलीवर करना है, 5 mg करनी है, 2 mg करनी है, तो आपका बल्ब भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको मीटर डोजेस फॉर्म की तरह आपकी बॉडी में देने के लिए, ठीक है। That the material used in the construction of bulb should be approved by the FDA, that means Food and Drug Authority, right? And bulb consist of the consist of bulb is, आगे अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बल्ब को देख लेते हैं। दैट मीन कंटिन्यूअस स्प्रे बल्ब, हाई स्पीड प्रोडक्शन टेक्निक, मीटरिंग बल्ब। कंटिन्यूअस स्प्रे मतलब आप अपने बल्ब को प्रेस किए और वहां पे जो डोजेस फॉर्म है वो निकलता रहा। हाई स्पीड मतलब एक ही बार में निकला, और जो आपका प्रोडक्ट है वो निकला, उसके बाद जो है वो जितनी देर तक आपने बल्ब को प्रेस किया उतनी देर तक आपका पूरा बॉडी में निकल। मीटर डोजेस फॉर्म, जैसे भी आप डिजायर्ड अमाउंट की बात कर रहे थे, मतलब आप पहले डिसाइड कर लोगे कि एक प्रेशर में या बल्ब जब भी आपका जाएगा तो कितना 2 mg ड्रग डिलीवर करेगा, 5 mg ड्रग डिलीवर करेगा, तो उतना ही आपका बल्ब जो है मीटेड बल्ब की तरह सेट किया जाता है, और एक प्रेशर में उतना ही बल्ब आपका रिलीज करेगा। बट यहाँ पे कुछ आपका वो है कि अगर जैसे प्लस माइनस हर चीज में होता है, तो फिर यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी 50 mg से लेके 150 mg तक ड्रग को क्लेम करिए कि बल्ब उसमें निकलेगा, तो हो सकता है कि +- 10% उसका कम निकले। जैसे 50 का 40 निकल जाएगा, बट 39 इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। 150 का 160, बट 160 65 इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब +- 10 तक आप अपनी बल्ब की रिलीज को या मेडिकेशन को, स्प्रे को, स्प्रेइंग कैपेसिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, है ना। ये कंपोनेंट्स है वर्क के लिए। पहला माउंट कैप और फ्लूरल, ठीक है। फ्लूरल basically it's attached a valve to the other parts of the container. For the use of container having one each of opening, the cup is made from the tin plate or aluminum, also used for the production of that kind of mount cap. Mount cap attached to the container, either in rolling the other lead of the bottle. ये जो आपका माउंट कैप है, ये वाला, ठीक है, ये आपकी बॉडी के साथ आपका जो
आपकी जो बल्ब की बॉडी है एंड जो आपका बाकी जो आपकी कंटेनर की बॉडी है उसके उसमें एक उसमें एक कैप टाइप का यूज किया जाएगा या कप टाइप का यूज किया जाता है, जिसको जो कि टीन प्लेट या फिर एल्यूमिनियम प्लेट के साथ बनाया जाता है या फिर हेल्प से बनाया जाता है। और इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी ऑफ द कंटेनर को अटैच करके रखता है। वाइल बॉडी और हाउसिंग, housing in like अगर मैं housing की बात करूँ, housing is generally produced by nylon plastic and it contain opening at the point of attachment with a deep tube, right? And the range of this tube, this wall body or housing is varies from 0.13 to 0.80 inch. ये आपका हाउसिंग है, ठीक है। अब ये वाला हाउसिंग जो है ये आपके जो माउंट कप है उसके साथ अटैच रहता है। और इसका काम ये जो मटेरियल है आप जो इसको देख रहे हो, इससे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है दैट इज पॉलिथीन, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक इंग्रेडिएंट और नायलॉन। gasket that mean gasket, this is rubber commonly। ये वाला जो गैस्केट है ये आपकी रबर से बनाए जाते हैं, बट ये कभी कभी ऐसा होता है, इसको क्या रोल है, ये कंपैटिबल हो जाता है आपकी ड्रग की। और जो फार्मास्यूटिकली जितनी भी फॉर्मुलेशन है उसमें आपको गैस्केट दिखेगा ही दिखेगा, राइट। स्टेम, stem, it is made up of nylon, but metal also, such as brass, stainless steel. It can be utilized as well. ठीक है। Spring, this one is a spring. The spring to hold the gasket in the place when the actuator is dispersed and released, it returns valve to its closed position. It's basically made up of stainless steel and it is mostly used, it is highly used almost in every aerosol form, right? Lastly, dip tube. Dip tube is made up of as polyethylene and like propylene, but material are acceptable for the used the because it should be the polyethylene, yeah, the polyethylene which you are using, it should be approved by FDA, and the diameter about of this dip tube is 0.122 0.5 inch, and the capillary dip tube, if you are using for capillary dip tube in case of water formulation, aqueous formulation, then it about 0.050 inch. Aquator, the aerosol product is delivered it is responsible for the delivery of proper and desired form. Especially it is designed button or actuator as must it fitted to the valve stem। मतलब आपकी जो एक्वेटर है वो आपकी जो ये स्टेम है यहाँ पे आपका सेट किया जाता है ये वाला एक्वेटर, सो दैट आपका जो यहाँ से जो भी आप रिलीज करोगे एक्वेटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी प्रोडक्ट को डिजायर्ड फॉर्म में देने के लिए। दे दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटर्स आर प्रेजेंट। फर्स्टली स्प्रे एक्वेटर, foam actuator, solid stem, and solid stem, and then spatial actuators. Then next, parameters consideration, all the active ingredients or the propellants or the drug container or the container जिन चीज के लिए भी जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक चीज आपकी जो ड्रग है, आपकी जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एपीआई जिनको आप यूज कर रहे हो उसके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। दैट मीन आप पहले एक बार इवेल्युएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफटीआईआर, with the help of GCMS, with the help of HPLC, liquid chromatography, कि आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी फिजिकल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, whether it is acceptable or whether they are compatible with that propellant and
आपको उसके बाद ही अपनी ड्रग के लिए प्रोपेलेंट ड्रग के लिए कंटेनर सेलेक्ट करना है। साइट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप कहाँ पे उसे अप्लाई कर रहे हैं वो उसके हिसाब से भी आपको अपनी ड्रग को डिजाइन करने की, आपके अपने डोजेस फॉर्म को डिजाइन करने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आपकी जो एरोजोल है एज ए मार्केटेड फॉर्मुलेशन, राइट, सोल्यूशन बेस्ड मिल जाएगा, दैट मीन नॉन एक्वस एक्वस वाटर बेस्ड, ठीक है। डिस्पर्शन बेस्ड मिल जाएगा, फोम सिस्टम, एक्वस स्टेबल फोम एंड इंट्रानेजल एरोजोल। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोल्यूशन बेस्ड अल्कोहल की सोल्यूशन बेस्ड अगर मैं एरोजोल की बात करती हूँ, दैट मीन जैसे हम एपिनेफ्रिन हो गया और बाइका एपिनेफ्रिन बाइकार्बोनेट, सॉर्बिटन एंड प्रोपेलेंट को हम यूज करके एक आपका जो है सोल्यूशन बेस्ड एरोजोल डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम एक्वस स्टेबल फोम्स की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक्टिव इंग्रेडिएंट लेनी है 95 to 96% एंड हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोपेलेंट यूज करके मतलब रिमेनिंग 3.5 और 5% हाइड्रोकार्बन यूज करके हम ऐसा प्रोपेलेंट बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे, देखिए ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली प्रेशर से ही फिल किया जाता है, राइट। तो प्रेशर, यहाँ पे 3 कैटेगरी के आप अपनी एरोजोल को बना सकते हो। पहला प्रेशर फीलिंग एपरेटस, कोल्ड फीलिंग एपरेटस एंड कंप्रेस्ड गैस। प्रेशर फीलिंग में बेसिकली क्या हो जाता है, प्रेशर फीलिंग ये होगा कि आपकी जो ये एपरेटस है इसमें जो प्रेशर ब्यूरेट है वो रहेगा, और जब आप इसको लिक्विफाइड गैस को इंट्रोड्यूस करोगे अपने एरोजोल के कंटेनर में, तो फिर ये प्रेशर के थ्रू या ये जो ब्यूरेट है, प्रेशर ब्यूरेट, इससे इसको इसकी जो प्रोपेलेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन आपका जो कोल्ड फीलिंग है, कोल्ड फीलिंग के केस में क्या होगा, आपकी प्रोपेलेंट जो है पहले आपकी प्रोपेलेंट जो है वो कुछ कॉइल्स से पास हो जाएंगी। कॉइल्स में हमने कोट करके रखा है एसीटोन एंड आइस को, ठीक है। तो उसके बाद जब वो आपके प्रोपेलेंट का जो है आपके कंटेनर में फिल होगा तो वो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इसीलिए हमने मतलब लगभग आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो, जैसे प्रोपेलेंट का गैस का टेम्परेचर 30 to 60 डिग्री है, तो सीधा सीधा कन्वर्ट कर देगा 10 या फिर 15 डिग्री में, और वैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर मतलब टेम्परेचर से आपकी कोल्ड फिलिंग होती है, ठीक है। बेसिकली आपका प्रोपेलेंट जो है वो पास होगा 10 कॉइल से, ठीक है, जहाँ कॉइल में एसीटोन की कोटिंग रहेगी, और फिर वो उसके बाद जाने के बाद इनक्यूबेटर में जाएगा। इनक्यूबेटर में जाने के बाद आपके जो कंटेनर में है वो प्रोपेलेंट और ड्रग जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कंप्रेस्ड एज कंप्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस एज अ नेम सेज, यहाँ पे हम कंप्रेशन हमारा प्रिंसिपल होगा, हम अपने प्रोपेलेंट को, हम अपनी ड्रग को कंप्रेस करके आपकी मशीन, आपकी जो कंटेनर है वहां पे ट्रांसफर करेंगे। क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल, जब भी आप क्वालिटी की बात करोगे तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें देखने की जरूरत है। पहली बात, आप कौन सी प्रोपेलेंट यूज कर रहे हो। दूसरा, बल्ब्स एक्चुएटर एंड डिप्टिव ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे हर एक चीज का एक ही मेजर नेम होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को डिजायर्ड फॉर्म में डिलीवर करे। टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजर, जहाँ पे आप उसको देखेंगे कि जैसे वर्क की एक्सेप्टेंस कैसी है, कंटेनर्स कैसे रखे हैं आपने, वेट वेरिएशन देखेंगे, वेट चेकिंग करेंगे, लीक टेस्टिंग करेंगे, स्प्रे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स है जिसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन द हम जब भी फार्मास्यूटिकल एरोसोल बना लेंगे तो ड्रग की फ्लेमिंग अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, फिजिको केमिकल नेचर कैसा है ड्रग का, मतलब डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, जो प्रोपेलेंट्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन, परफॉर्मेंस, दैट मीन आपका ड्रग जैसे आप क्लेम कर रहे हो वो है क्या। अगर आप स्प्रे बोल रहे हो, स्प्रे है, कितना कंटेंट निकल के आ रहा है, पार्टिकल साइज कैसा है, लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मीटर डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हो तो मीटर डोजेस फॉर्म में ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में सारा ड्रग आ गया उसके बाद बस फॉर्म आ रहा है, ठीक है। एंड देन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी तब हो जाएगा जैसे सपोज कीजिए मैं कोई एक ड्रग को दे रही हूँ, जैसे न्यूमाइसिन है,
एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ना। अगर मैं नियोमाइसिन को एज अ फोम की एज अ एरोजोल की तरह क्लेम कर रही हूँ, तो नियोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मेरे को एनिमल्स पे या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोकल्चर करके देखना पड़ेगा कि उसमें एक्टिविटी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है जो आपने एरोजोल बनाया है। फ्लेम प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा जो पैरामीटर है फ्लेम प्रोजेक्शन, दैट मीन हम क्या करेंगे, फ्लेम के सामने अपनी ट्रक को क्या जो है आप स्प्रे करोगे, ठीक है। और स्प्रे करोगे अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि वो कितना फ्लेम को एक्सटेंड कर रहा है, या फिर आप क्या फ्लेम के साथ उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो आपको हाईली फ्लेमेबल को लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपकी कंटेनर में भी एक लोगो हो जाएगा, दैट मीन फ्लेमेबल करके, है ना। और ये आपका जो फ्लेम लेंथ है वो आप जो है मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। फ्लैश पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, आप एरोजोल प्रोडक्ट को मिनिमम चिल टेम्परेचर जो होगी या मैक्सिमम चिल टेम्परेचर जो होते हैं, दैट इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे रखेंगे। एंड देन उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जब तक वो जो आपका एरोजोल है उससे वेपर इग्नाइट ना हो, है ना। जब आपका वेपर इग्नाइट होता है तो आपका जैसे आप उसका फ्लेमेबल कंपोनेंट है, उसकी उसके केस में टॉपिकल हाइड्रोकार्बन अगर आपने यूज किया तो फिर वो वेपर फ्लैश पॉइंट पे वेपर देगा, ठीक है। तो आपको वो टाइम और वो टेम्परेचर नोट करना है जब वो उसने फ्लेम प्रोड्यूस किया या फ्लैश मतलब आपका वेपर इग्नाइट हुआ। वेपर प्रेशर के लिए आप प्रेशर गॉज को लोगे, ठीक है। प्रेशर गॉज में जो है आप क्या करोगे, उसके हेल्प से आपको जो है वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। डेंसिटी हाइड्रोमीटर और पिक्नोमीटर, जहाँ पे क्या किया जाता है, आप जो प्रेशर ट्यूब है उसको आपकी जो बल्ब है, बल्ब की हुक है, उसमें ये जो प्रेशर ट्यूब है इसको आप अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद जो आपका पिक्नोमीटर है या हाइड्रोमीटर है उसको आप ग्लास ट्यूब में रख दे, ठीक है। और जितना अमाउंट आपको चाहिए सफिशिएंटली उतना आप जो है लगाने के बाद आप वेट करते हैं डेंसिटी को, मतलब हाइड्रोमीटर में देखने के लिए। और डेंसिटी यहाँ पे जो स्केल है पिक्नोमीटर में, उसमें आपको दिख जाएगा जब आप ऐसे इंट्रोड्यूस कराओगे अपने बल्ब से अपनी एरोजोल को, तो वो डिटेक्ट कर लेगा आपकी ड्रग के आपकी जो एरोजोल है उसकी डेंसिटी कितनी है। मॉइस्चर कंटेंट कार्लफिशर मेथड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट के लिए आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रास क्रोमेटोग्राफी में देख सकते हो। आपकी ड्रग की पूरी आपके प्रोपेलेंट की पूरी नेचर इसमें आप पता चल जाएगा। एरोजोल वर्ब डिस्चार्ज रेट, आपको क्या करना है, जितना टाइम के साथ वो ड्रग डिस्चार्ज हो रही है उससे नोट करना है। और कितने ग्राम में कितना पर सेकंड में मतलब कितने सेकंड में कितना ग्राम रिलीज कर रहे हैं वो एक बार नोट करना है। नेट कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, आप जो है ड्रग को एक बार फुल कंटेनर में वे कीजिए। उसके बाद आपके ड्रग को निकालने के बाद डिस्पेंस करने के बाद कंटेनर की वेट कीजिए, वेट वेरिएशन आपको पता चल जाएगा। फोमिंग स्टेबिलिटी के लिए आप विजुअल इवेलुएशन कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे, टाइम हम उसको फोम प्रोड्यूस करके रख देंगे, फोम प्रोड्यूस करने में कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होने के लिए, ये सारी चीजें हमें नोट करनी है। डन। थैंक यू। फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक एरोजोल समझ में आया। हैव अ गुड डे।